क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह इंटरनेट का इशू था। और प्रॉब्ली इंशाल्लाह आज से दोबारा हमने रिज्यूम किया है। तो हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लासों में एनलाइटनमेंट के बारे में, कांट के आर्टिकल के बारे में, और कुछ वीडियोस मैंने आपसे शेयर की थी। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी और अंडरस्टैंड किया होगा एनलाइटनमेंट के हवाले से, और डिफरेंट तरीके से जो उस वीडियो के अंदर जो मुजम्मिल ने बयान किया है। तो हो सकता है कि बहुत से पॉइंट्स आपके जहन में क्लियर हुए होंगे, और हो सकता है कि बहुत से पॉइंट्स से आप एग्री नहीं करते होंगे, और बहुत से पॉइंट्स आपके जहनों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे होंगे। So wherever there are the confusions, I wish that you have freedom to ask questions as much as possible, without any fear, without any hesitation, so that the more questions you will ask, the more you will learn, and the things would be quite clear in your mind. तो आज हम जिस टॉपिक की तरफ जाएंगे वो आपके कोर्स आउटलाइन में थर्ड टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है एनलाइटनमेंट अ क्रिटिकल व्यू, और तीसरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल पीरियड एंड डार्क एजेस। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा डार्क एजेस के जरिए, और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, और थोड़ा सा फोकस भी इसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो इसलिए वी आर स्टार्टिंग विद द डार्क एजेस। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट विद द डार्क एजेस, I would like to give you a very brief summary of the historical development in the Europe, and how the European proved in the history their development progress in almost every field and every walk of life, right from science, art, literature, and religion, even culture, medicine, astrology, and geography, geology, and philosophy, of course, psychology. So there are no disciplines where the Europeans have not worked in the different times of the history. So if we start the historical timeline, so we can say that uh, first we have the prehistory, means the time before history was actually written, and during the prehistory, the people were more believed in magic and the supernatural forces, and they believed that their life is being controlled by some magical entities who have the power to do good and bad with them. Actually, the time when the magical uh, culture and society were more in power, so there were a few people in those time who actually manipulated the people by making them fearful so that they would obey them. And therefore, those few people have interpreted the world as if it is a world of supernature, and it is a world controlled by the magical power. So because the people were quite simple in that time, they accepted what they were explained and what they were told, and that they started believing that
their life and their life matter was actually controlled by some supernatural power, such as a person or a god or a goddess who, by using the magic, can do all things, can make their lives good or can make their life bad. So it was actually the prehistoric time in the Europe. So in that time, the entire Europe was actually under the control of the magical ideology. And of course, this magical ideology was promoted by a few clever people who wanted to control the masses, who wanted to control the people, innocent people, so that they can get benefit from them, so that they can become the slaves for them forever. And they were quite successful in that. So it was the prehistorical, the magical time period in Europe. Then after that, a few great minds in the history of Europe, especially in Greece, what we call in Urdu Yunan, there were a few thinkers who challenged those people who thought that magic is the only power to control the fate of human beings. Those people who belong to the ancient Greece, the Qadim Yunan, they belong to the ancient Greece. They first time raised question and challenged the magical power of the people and challenged that what they say as the magic can control everything is actually not true. So they were the ancient Greeks, what we name them as the early philosophers. The early philosophers actually investigated the nature directly. They investigated the nature directly without taking anyone's help to understand the world. And those ancient philosophers thought to believe that the direct observation of the nature can reveal the truth about the nature, the people, the universe, in everything that exists. So the early Greek philosophers raised questions like that what are the basic elements of the universe? Or in other words, we can say that what are the fundamental elements? The fundamental elements of universe means what constitute the universe? What made this universe? Or what is the underlying fundamental element that made this universe? So they came with a different investigation and different answers. Some of them explored and believed that the fundamental element of the universe is water. And the entire reality, whether living or non-living realities, are directly or indirectly related to the water. So that was the natural substance they believe that made this universe possible. Then the other people, other early Greek philosophers
came into action, and they contributed by questioning the nature. They contributed by challenging the nature and by knowing the fundamental element. Some of them have said that the fundamental element of universe is fire. Some still believe that the fundamental element of universe is earth, जिसको हम मट्टी कहते हैं. Or someone have also said that the fundamental element of the universe is air. Later on, philosophers have agreed that we cannot say that one single element is the entire fundamental element of the nature or the universe. Rather, all these four elements have their strong position in the universe, and we cannot understand the entire natural world without understanding these contributory substances such as water, air, fire, and earth. The early philosophers, or the early Greek philosophers, or we can say the early classical philosophers, have raised the question to the nature. Therefore, they were known as the naturalist, or the first philosophers, or the natural philosophers, or they were known as pre-Socratics. So we can know them by different names. You should keep in mind their names so that when these names appear, you should not confuse. So they were the first philosophers. They were also known as the naturalists. They were also known as the natural philosophers because they questioned the nature. And they were also known as pre-Socratics, which means that they were the philosophers who were there before one of the most famous philosophers in the entire history of philosophy, whose name was Socrates, Socrates. So, any philosophers who existed before Socrates were known as early philosophers or pre-Socratics, and they were the philosophers of the classical period. So the early classical period in Europe was the period of knowledge, investigation, wisdom, discovery, and challenges against those forces who manipulate the nature for thousands of years. So, in this sense, we can say that classical age was the age of philosophy. It was the age of literature. It was the age of poetry. It was the age of early science, mathematics, astrophysics, astrology, archaeology, even psychology, chemistry, physics, politics, economics, and all the discipline that we have right now in our modern world, or the discipline that we have right now in the modern world, were the gift of the classical age. It was contribution of the classical period, or the people who contributed in the classical age that made
the Europe as a glorifying area in the entire world in that time, right? So we can say that the classical age remained in power till 1500 AD. As you can see here, okay, from 1500 to 1492 or 1500, the entire time period was regarded as the Dark Ages. Why it was Dark Ages, we will discuss. So we can say that after the magical world, there was the world of classical age, which existed which existed till 500 AD. In the classical age, the two most important nations have contributed marvelously, unbelievingly, that still we are dependent on the information, knowledge, and wisdom they had left some 2500 years back. So those two nations were the Greeks and the Roman. You might know and heard about Roman Empire, right? So actually, the Greeks were the early classical people, and later on, the Greeks were replaced by the Romans, and later on, the Romans were replaced by the Germans and the Europeans, the other Europeans. So 500 AD is actually considered as the downfall of Roman Empire. जो रोमन एम्पायर थी, जो बहुत ज्यादा एक वसी और अरीज एम्पायर थी, और वहाँ पर जो इल्म और तमद्दुन और लॉ, फिलॉसफी, और हर तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी, तो वो जब जर्मन्स ने रोमन एम्पायर के ऊपर हमला किया 500 ऑलमोस्ट एडी के दरमियान, so then there was a fall of Roman Empire, and right from there, from 500 to 1492, the other period started known as Dark Age. What was the famous thing about the Greek and the Roman Empire or the Roman period? Apart from many other things, they were very much popular in literature. Especially the Greeks were very famous in philosophy and other disciplines of science, while the Romans have contributed in the politics and the ideology or thoughts related to the politics. And their laws and their political ideology is still the part of the different countries, including Pakistan, and all those countries who are the member of Commonwealth. The Commonwealth countries are those countries which are being controlled by Elizabeth, or the Queen Elizabeth, who is the Queen of England still. So Bangladesh, Pakistan, India, Australia, right? They are and many other countries are the countries of the Commonwealth which are being controlled by Elizabeth, Queen Elizabeth. So the Roman Empire, the Roman and the Greek nation owe a great deal of knowledge to us. यानी हम मकरूज हैं ग्रीक्स और रोमन नेशन के, जिन्होंने बेइंतहा कंट्रीब्यूट किया तकरीबन इल्म के हर मैदान के अंदर, और ये उनकी काविशें थी कि जिसकी बुनियाद पर आज भी हम उसको एडमायर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं. मसलन व्हेन यू स्टडी समवेयर द लीडरशिप, हैव यू स्टडी द लीडरशिप कोर्स?
जी, मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? आइजा, क्लियर आ रही है आवाज? मरियम, आपको आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, ठीक है। सो फिजा, प्लीज check the problem at your end. Great number of students are getting my voice very clear. प्रॉब्लम सिर्फ एक ये सामने आई है कि मोहम्मद हसन शायद ये कह रहे हैं कि सर उर्दू में बात करें। चलें, तो इसका मतलब है कि मोहम्मद हसन को बात समझ में नहीं आई। बाकी जो लोग हैं उनको जो बात मैंने की वो समझ में आ गई है अब तक, या मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा? जी मरियम, आपको बात जो थी वो कंप्लीट समझ में आई है? मरियम रहीम, आइजा? जी आइजा, आपको कुछ समझ में आया? अब्दुल राफे, अब्दुल्ला सुमरो, अली बशीर, प्लीज डू कंफर्मेशन, गिव मी योर कंफर्मेशन कि आपको बात समझ में आ रही है, ताकि जो एफर्ट है वो ज़ाया ना हो। मुस्तफ़ा, आपको बात समझ में आई है? मरियम रहीम, मरियम यूसुफ, लाइबा खान, आपको बात समझ में आई है अब तक? डू राइट योर कमेंट्स ऑन चैट सो दैट आई कैन गेट अ फीडबैक एंड गो अहेड। अमारा फरहान, तो मैं चाहूँगा कि जो कुछ मैंने अभी बयान किया है, अगर आप में से कोई 1 मिनट ले ले और इस बात को थोड़ा सा समराइज कर दे, ताकि जिन स्टूडेंट्स को शायद कोई इशू है, समझ में नहीं आया है, तो वो समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एनी वन ऑफ यू मे रेज योर हैंड्स सो दैट आई वुड अलाउ यू, अब तक जो हमने बात की है कि आप वो बात करें ताकि दूसरे समझ सकें। एनी वन ऑफ यू? G, Laiba, if I ask you, so can you do it? Can you explain briefly in the form of summary what we have discussed so that the other would listen to us as well? जी सर, तो आपने ये बताया था कि जो हमारी क्लासिकल पीरियड से पहले अगर हम इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हिस्ट्री जो है वो पहले प्री हिस्टोरिक जो एरा था, उसमें लोग बिलीव करते थे कि जो मैजिक है और सुपर नेचुरल फोर्सेस जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट्स है। फिर कुछ लोगों ने और वो इस वजह से ये सोचने पे मजबूर थे कि कुछ लोगों ने उन्हें डराया हुआ था कि ये मतलब ये चीजें जो हैं यही इनके जो इस तरह से बोलेंगे कि एनवायरनमेंट में जो काम कर रही हैं वो इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है। जो मैजिकल फोर्सेज हैं और सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं वो उनकी लाइफ्स को जो है वो डील कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो इसको सोचने पर मजबूर था और ये सब जो है यूरोप में हो रहा था। फिर उसके बाद कुछ ग्रेट माइंड्स थे यूरोप की हिस्ट्री में, स्पेशली ग्रीस में, जिन्होंने जो ये मैजिकल पावर्स का जो कॉन्सेप्ट जो लोग रखते थे उनके सामने क्वेश्चंस रेस किए थे और उनको चैलेंज किया था।
फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो एयर, फायर और अर्थ को जो है फंडामेंटल एलिमेंट समझते थे। अर्ली फिलोसफर्स ने जो ये बोला कि उनके खिलाफ जो है वो क्वेश्चंस रेज किए थे। अब आपने फिर फिलोसफर्स के नाम बताए थे कि जो अर्ली फिलोसफर्स थे, मतलब जो सोक्रेट्स से पहले थे, वो अर्ली फिलोसफर्स कहलाते थे। फिर उनके बाद वाले नेचुरलिस्ट, नेचुरल फिलोसफर और सोक्रेट्स कहलाते थे। गुड, ठीक है, दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही आपने फरमाया। इसका मतलब है कि मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, और शुक्र है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई और आपको चीज़ें समझ में आ रही। ठीक है, तो विश करते हैं कि जल्द से जल्द कॉलेज खुल जाए, ताकि जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो बगैर किसी इंटरप्शन के हम वहाँ पे कर सकें और बहुत कुछ हम डिस्कस कर सकें। सो इंशाल्लाह देखते हैं कि कब हालात बेहतर होते हैं। सो फार जो मैंने बात की है, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ कि अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन पे देखें तो हम एक बिगनिंग शुरू कर देते हैं प्री हिस्ट्री से, जहाँ पर हिस्ट्री मौजूद नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री नहीं थी। उसके बाद फिर हम लिंक करते हैं उसको मैजिकल वर्ल्ड से, जहाँ पर मैजिक को एज अ पावर समझा जाता था और फ्यू पीपल मैनिपुलेटेड द एंटायर यूनिवर्स। उसके बाद फिर ग्रीक्स जो पीरियड है वो सामने आया, और ग्रीक्स के पीरियड के खत्म होने के बाद जो पीरियड शुरू हुआ वो रोमन एम्पायर, ये रोमन पीरियड कहलाता है। रोमन पीरियड का जो खात्मा है वो तकरीबन 500 एडी के अंदर हुआ। जो सबसे अहम तरीन कॉन्ट्रीब्यूशन है ये अर्ली पीरियड्स की, उसमें ग्रीक और रोमन जो पीरियड थे और जो लोग थे उन्होंने बेनता कंट्रीब्यूट किया। यही वजह है कि दे वर वेरी पॉपुलर इन लिटरेचर, इन फिलोसफी, आर्ट, पोइट्री एंड ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म ऑफ knowledge they have contributed, whether it's science, natural science, physical science, or social sciences, astrology, astrophysics, physical sciences, हर जगह उन्होंने सवालात किए और लिखा और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। सो हुआ ये कि 500 एडी के अंदर ऑलमोस्ट द रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉयड, and who destroyed it, why it was destroyed? The alliance in Europe, including Germany and German people, they were actually afraid of the growth of the Roman Empire, the glory of the Roman Empire. जो रोमन एम्पायर की जो शान और शौकत, जो उसकी ग्लोरी, जो उसका मुकाम, जो नॉलेज और जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, वो जर्मन को हजम नहीं हुई। सो दे एक्चुअली अटैक्ड ऑन द रोमन्स एंड डिस्ट्रॉयड, दे अटैक्ड ऑन द रोमन एंड दे वर लेड बाय द चर्च एंड द किंग ऑफ दैट टाइम। जो फ्यूडल्स थे, यानी फ्यूडल्स हम कहते हैं जो जागीरदार होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो उसमें शामिल थे उस अटैक के अंदर। जो चर्च के जो पादरी थे वो उन्होंने इस जंग को जो है वो कहा कि की जानी चाहिए। और जो उस वक्त के बादशाह थे जर्मन के, बेल्जियम के और फ्रांस के, दे वर एक्चुअली द पीपल हु डिड नॉट सी द ग्रोथ ऑफ द रोमन्स वेरी हैप्पीली। तो इन्होंने अलायंस बनाकर रोमन एम्पायर को ख़त्म किया, और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि रोमन एम्पायर की जितनी भी फिजिकल और नॉन फिजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन थी उसको नुकसान पहुंचाया। और दो चीज़ें उन्होंने काम की कि जितनी भी रोमन जो इमारतें थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, उसको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। और जो सबसे अहम तरीन नुकसान पहुंचा वो ये पहुंचा कि जो रोमन लाइब्रेरीज थी, क्योंकि रोमन लाइब्रेरीज के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, रोमन इंस्टीट्यूशन में जो कुछ पढ़ाया जाता था, वो ग्रीक के लिटरेचर पढ़ाया जाता था, ग्रीक प्लस रोमन्स। और ग्रीक और रोमन का जो लिटरेचर था वो समझ लें कि एक जादू की तरह काम करता था, कि जिससे लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आती थी, माशरा बेहतरी की तरफ जाता था। तो सबसे पहले उन्होंने अटैक किया और लाइब्रेरीज को आग लगाई, और जो अहम तरीन किताबें थी उनको जला दिया। तो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ किताबें बचाने में कामयाब हुए, ढक छुप के उन्होंने किताबें बचा ली, जिसकी वजह से आज हमें जो लिटरेचर मिलता है वो हमें उसी वजह से मिलता है। अदरवाइज
द जर्मन्स हैव डन ऑफ सच अ रेडिकुलस एक्ट कि उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए जो रोमन एम्पायर और जो ग्रीक लिटरेचर है उसको तबाह कर। एंड देन वी केम टू द डार्क एजेस, और फिर हम पहुंचते हैं कहां पे? डार्क एजेस की तरफ। डार्क एजेस को हम मिडिल एजेस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो डार्क एजेस है इसको आप यहां देख सकते हैं कि तकरीबन 1000 साल है का पीरियड है। वो कहा जाता है कि यूरोप के अंदर 1000 साल ऐसे गुजरे हैं जिसको हम डार्क एजेस कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकी या कोई खातिर खा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। सो 500 एडी से ऑलमोस्ट 1500 एडी तक यूरोप रिमेन इन डार्कनेस, एंड द एंटायर यूरोप वाज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और इस पूरे डार्क एजेस के अंदर, मिडिल एजेस के अंदर जो कुछ भी हुआ उसने पूरे यूरोप को नुकसान पहुंचाया। अब सवाल ये उठता है कि डार्क एजेस को डार्क एजेस क्यों कहा जाता है? डार्क एजेस को डार्क एजेस का नाम किसने दिया? तो 1500 के अंदर कुछ ह्यूमनिस्ट थे, कुछ फिलोसफर्स और थिंकर्स थे, जिन्होंने तज्जिया करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि यूरोप में जो 1000 साल के अंदर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो ह्यूमन फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, जो इंटेलेक्चुअलिज्म होना चाहिए था, जो इल्म की ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो तकरीबन ना होने के बराबर। राइट? सो देयर वाजंट एनी कंट्रीब्यूशन इन द कल्चर, इन द लैंग्वेज, इन थॉट्स, इन आइडियोलॉजी। तो जहां पर इन तमाम चीजों पर कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, वहां पर तरक्की, कामयाबी, इल्म और जहानत की जो मुकाम है वो खत्म हो जाती है, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। सो दैट इज वाई द डार्क एजेस was considered as dark because of the lack of any contribution that could help to humanity and that could help to entire human world. This is what we had discussed already. The Dark Ages remained between fall of Roman Empire and beginning of the Italian Renaissance. अच्छा जी, यहाँ पर हेडिंग में जो लफ्ज नजर आ रहा है आपको रेनिसा, ये थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, या आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो, ताकि आप इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएं। तो डार्क एजेस शुरू हुआ रोमन एम्पायर तक, एम्पायर से, और उसका इख्तिताम हुआ बिगिनिंग ऑफ द इटालियन रेनिसा अराउंड 1500 एडी। अभी दो लफ्ज हैं, इटालियन और रेनिसा। तो इटालियन तो आप ये समझ जाएं कि द पीपल ऑफ इटली, ठीक है।
नहीं नहीं पापा यार, इतनी लंबी बॉडी करने की जरूरत नहीं है। Recording in progress. सो इटली और इटालियन तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रेनिसा को हम समझते हैं कि रेनिसा का मतलब क्या है। रेनिसा एक्चुअली इज एन इटालियन वर्ड और जिसके अंग्रेजी में मायने हैं रीबर्थ ऑफ कल्चर। ठीक है, रीबर्थ ऑफ कल्चर। तो अब जब हम ये कहते हैं कि डार्क एजेस की इब्तिदा हुई रोमन एम्पायर से, डार्क एजेस की इब्तिदा हुई रोमन एम्पायर से, और कब तक डार्क एजेस रही? इटालियन रेनेसां के रुनुमा होने तक। तो इटालियन रेनेसां का मतलब ये कि द पीपल ऑफ द इटली और द फिलोसफर्स ऑफ द इटली, दे हैव कंट्रीब्यूटेड and preached people that what is the position of the human in this entire universe। एक इंडिविजुअल इंसान की इस दुनिया में क्या हैसियत है, and how a human can get his freedom from the forces that do not allow them to be free। यानी रेनेसा की मूवमेंट ने एक ये शऊर पैदा किया आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर कि हमें दोबारा पलटकर उस कल्चर को स्टडी करना पड़ेगा जिस कल्चर की वजह से यूरोप ग्लोरीफाई रहा और इल्म और फिलॉसफी के अंदर सुपर पोजिशन हासिल की उसने। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है रिवाइविंग, रिवाइजिंग एंड रीस्टडिंग द ग्रीक एंड रोमन कल्चर। तो जो रोमन नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फिलॉसफी और किताबें जो कुछ भी तबाह हो गई थी और जो बची थी, किसी तरह से बच गई थी, उनको दोबारा से इकट्ठा किया गया और फिर उनको दोबारा से पढ़ा गया। ये समझ के पढ़ा गया कि यही वो रास्ता है, यही वो जरिया है जिसके जरिए हम यूरोप अपना खोया हुआ वकार या प्रेस्टीज हासिल कर सकता है। तो इटालियन रेनेसां का मतलब यह है रीज्वाइनिंग, रीबर्थ of the culture in terms of philosophy, in terms of knowledge and wisdom, so that the lost glory can be attained again। ठीक है? So we can divide it in this sense: the fall of Roman Empire, 500 AD, the beginning of the Dark Ages after 500 or around 500, and the beginning of the Italian Renaissance, 1492. And Renaissance means rebirth of a culture। What was the popular in the Dark Ages was the lack of scientific and cultural advancement। जहां पर साइंटिफिक और कल्चरल एडवांसमेंट पर पाबंदी लगा दी जाए, यूरोप के उस दौर को हम डार्क एजेस के नाम से जानते हैं।
लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तो बात हमने यूरोप की है, इसके अलावा भी अगर दुनिया में कहीं साइंटिफिक और कल्चरल एडवांसमेंट में रुकावट डाल दी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फला कंट्रीज जो है वो डार्क एजेस से गुजर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि वी आर एज अ पाकिस्तानी मूविंग राइट नाउ पाकिस्तानी डार्क एजेस। द पॉइंट इज दैट कि वी आर नॉट हैविंग any kind of scientific achievement in the last 73 years. And even if we have achieved, we have been faced different kind of criticism. कुछ philosophers, कुछ scientists पाकिस्तान के ऐसे नामवर गुजरे हैं who have achieved the Nobel Prize in physics, but they were criticized in the name of religion. They were criticized in the name of sect, and therefore the scientific community of Pakistan, the young scientists of Pakistan, the science students do not even know their names because their name and their contribution have been expelled from the science or scientific books. उनकी जो contribution है, उनका जो कारनामा है, उसको साइंस की किताबों से निकाल दिया गया है। द रीजन वॉज दैट दे वर नॉट फॉलोइंग और दे वर नॉट द पार्ट ऑफ सम स्पेसिफिक रिलीजियस कमिटमेंट। तो अब जब हम कहते हैं लैक ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट, द सेम थिंग यूज्ड टू हैपन इन द डार्क एजेस। Anyone who wanted to do any scientific discoveries, they were brought in front of the church and the king of that time. And the church and the king wanted the clarification कि why have you done, why have you explored the nature? The exploration of nature is not the task of science, they said. Rather, the exploration of nature is the domain of religion, domain of king, domain of church. If you want any inquiry about the nature, you should refer to the church and church interpretation, and church would interpret it in terms of Bible. बाइबल की जो एक्सप्लेनेशन होगी वही बताएगी वो, और उसी पर अमल करना पड़ेगा। आपको अलग से ये आजादी नहीं है कि आप साइंस और दुनिया और नेचर और स्पेस के बारे में कुछ स्टडी करें। सो इन द डार्क एजेस मेनी ग्रेट माइंड्स वर स्लॉटर्ड। जो बहुत से ग्रेट माइंड्स थे, थिंकर्स थे, उनके सर कलम कर दिए गए, उनको मुल्क बदल कर दिया गया, और उनको ये कहकर रोक दिया गया कि यू हैव नॉट ऑथराइज्ड to question the nature directly. चर्च का ये कहना था कि when you question the nature directly, you question the God, and when you question the God, so you question the church. And they believe that the church and the king are the direct representative of God. कि चर्च यानी चर्च के जो पादरी हैं वो और जो किंग हैं वो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं अल्लाह के। लिहाजा अगर आप नेचर में इंटरफेयर करते हैं तो आप चर्च के मामला पे इंटरफेयर कर रहे हैं, और आप किंग्स या हुकूमत के मामला में इंटरफेयर कर रहे हैं। लिहाजा यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। व्हेन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वाज प्रिवेलिंग, जब इस तरह का माहौल वहां पे प्रिवेल हो रहा था, सो जो कल्चरल एडवांसमेंट होनी चाहिए थी, जो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए था, जो साइंटिफिक चेंजेस आने चाहिए थे, वो वहां पे रुक गए। यू कैन इमेजिन कि अगर ये डार्क एजेस यूरोप में नहीं होता तो प्रोबेबली मेरा ख्याल ये है कि जो टेक्नोलॉजी आज हम हासिल कर रहे हैं वो हम कई साल पहले हासिल कर चुके होते। जो एडवांसमेंट अब हम कर रहे हैं, सो स्टिल वी आर 1000 years बैक इन द एडवांसमेंट। वो जो 1000 साल लॉस हुआ है
जहां पर बहुत कुछ डिस्कवर और किया जा सकता था, तो जो डिस्कवरी 1000 साल पहले होने वाली थी, वो फिर 1000 साल बाद हुई। So the entire world could not get benefit from the discoveries, right? तो इसी वजह से इस एज को डार्क एजेस कहा जाता है, एंड दे आर डिफरेंट फीचर्स एज वेल। इसके अलावा और भी बहुत सी खुसूसियात। मैं अजान का ब्रेक ले रहा हूं 1-2 मिनट के लिए, फिर हम उसको दोबारा बात करते हैं, ठीक है? इन द मीन वाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट पे लिख सकते हैं। Recording stopped.
ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अगर आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं, इससे पहले कि हम अगली स्लाइड तक पहुंचे। So everything is clear to Aiza and I hope कि सबको भी क्लियर हुई होगी. So please do give me your feedback very quickly. Now, if we talk about the Dark Ages, so Dark Ages is most of the time is associated with a system of ruling known as feudalism. फ्यूडलिज्म क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Recording in progress. जी, तो बात हम कर रहे थे फ्यूडलिज्म और डार्क एजेस के बारे में, और मैं मुख्तसरन आपको ये क्विकली शेयर कर दूं कि फ्यूडलिज्म क्या है, ताकि फिर हम इसको समझ सकें आसानी से। ठीक है, जैसा कि मैं ये आपसे बयान कर रहा था कि फ्यूडलिज्म इज अ काइंड ऑफ सिस्टम, एक निज़ाम है किसी भी हुकूमत चलाने का, जैसे सोशलिज्म होता है और कैपिटलिज्म होता है। इसी तरह एक सिस्टम वहां पर राइज किया गया है जिसको हम कहते हैं जागीरदारी निज़ाम, जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को देखा करता था उस दौर के माशरे की। यानी मिडिल एजेस में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को मॉनिटर किया जाता था इस निज़ाम के तहत। अब सवाल ये कि ये जो फ्यूडलिज्म है, इसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखेंगे या नेगेटिव एस्पेक्ट से देखेंगे, तो उसका जवाब यह है कि डार्क एजेस में जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ या इसको इस्तेमाल किया गया, तो ऑफ कोर्स इट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव वे ऑफ रूलिंग द सोसाइटी। डार्क एजेस के अंदर जब फ्यूडलिज्म को देखा जाएगा तो पता ये चलेगा कि ये एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लेबर सोशल प्रोग्रेस और जो प्रोस्पेरिटी थी उसमें रुकावटें डाल दी गई। यानी जो मजदूर, जो किसान, जो मेहनतकश, जो मेहनत करते थे, उनकी मेहनत
का सिला उनको नहीं मिलता। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक किसान दिन रात अपने खेतों में हल चलाता है और अनाज उगाता है, और वो जो अनाज उगता है वो उसकी मेहनत का सिला होता है। तो अगर कोई शख्स मेहनत कर रहा है तो उसका ये हक है कि उसको उस मेहनत का पूरा सिला उसको मिले। फ्यूडलिज्म निजाम के अंदर इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द फ्यूडल लॉर्ड। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स, जो जबरी तौर पर जो किसान, जो लेबर जो हुआ करती थी, उनसे मेहनत और मुशक्कत करवाते थे, उनसे खेतीबाड़ी करवाते थे, उनकी अमलाक, उनकी चीजों पर कब्जा करते थे, उनके अनाज पर कब्जा करते थे और उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे। यही वजह है कि किसान की जिंदगी कभी इंप्रूव नहीं हुई। And they are under the control of the feudal lords. So they did not get any opportunity to improve their life. तो डार्क एजेस का जो एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है फ्यूडलिज्म, जहां पर जो गरीब पुअर तबका था उसकी लाइफ में किसी किस्म को। This feudalism is still in many countries. In 2021, our country own feudalism. जो इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, जितनी भी जगहें जहां पर जागीरदार रहते हैं, they actually control the poor peasants, the poor farmers. जागीरदारों के बारे में आप कोई वीडियो देख लीजिए यहाँ पर यूट्यूब पे उठा के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डार्क एजेस के अंदर क्या होता होगा। तो जिस तरह के जुल्म और जबर और कंट्रोलिंग फ्यूडल लॉर्ड्स करते थे उस जमाने में, अगर उसकी प्रैक्टिकल शक्ल आज के जमाने में देखनी है तो आप खुद किसी गांव, किसी देहात में जाकर इसको महसूस कर सकते हैं। The life of the poor peasant and farmer getting worse and worse, and there were no chance for their life to improve. These feudal lords have controlled each and every aspect of the poor people, and they would not allow these poor people to progress in a society. They did not want poor people to be prosper or to flourish as a good human being. Rather, they used to live their life hand to mouth, and within that process, they die and they lose their lives. तो अगर मैं ये कहूं कि ये एक जुल्म का एक निजाम था और है, जिसकी वजह से डार्क एजेस को डार्क एजेस कहा जाता है। ठीक है, बस हमारे पास 6-7 मिनट है, इस पर हम इस स्लाइड को देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिटेल में तो इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे। रिलीजियस सुपरस्टिशंस की बात कर लेंगे डार्क एजेस के अंदर। एक तो हमने डार्क एजेस और फ्यूडलिज्म की बात की, अब हम बात करें रिलीजियस सुपरस्टिशंस। कैथोलिक चर्च वॉज हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जो कंट्रोल था पूरा यूरोप में, पूरा डार्क एजेस के अंदर, वो था कैथोलिक चर्च का। इसलिए हम कहते हैं कि देवर हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। वो एक इदारे की हैसियत हासिल कर चुके। इदारे वो होते हैं जो रूल्स बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, चीजों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सो द कैथोलिक चर्च वॉज लाइक अ वेरी हाईली एक्टिव ऑफिस विच कंट्रोल्ड ईच एंड एवरीथिंग। The Catholic Church opposed scientific and cultural advancement, जिसका भी हमने जिक्र किया। Greeks
and Roman scientific and cultural knowledge was strongly discouraged. Crusades were fought between the Arab Muslims and the European between 1095 and 1291. ठीक है, क्यों ये लड़ी गई इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. बट दीज वर द रिलीजियस सुपरस्टिशंस इन द डार्क एजेस. यहाँ तक मैं इसको रखता हूँ, मस्जिद को मैं आगे नहीं बात कर रहा हूँ. और इसकी इस जो हम लेक्चर इस वक्त जो मैंने लिया है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर वो रिकॉर्डिंग पूरी आपको मिल जाएगी. ठीक है जी. सो फार थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आपने सुना, और उम्मीद है कि समझा भी होगा. काइंडली मुझे अटेंडेंस भेज दीजिए अब तक की, ताकि मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. तो फिजा काइंडली सेंड मी योर अटेंडेंस, जो आपने अटेंडेंस का शॉट लिया वो मुझे भेज दीजिए, या कोई भी भेज दे ताकि मैं उसको फॉरवर्ड करूँ. Recording